31 अक्टूबर 2022 2022 31 अक्टूबर 2022 का द हिंदू का जिस्ट है। द सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली हेल्ड इन अ केस कंसर्निंग अ वुमन known only as XX to protect her identity that compelling an unwilling person to undergo a DNA test would be a violation of personal liberty and right to privacy, turning turning the spotlight on technology that aids the cause of justice but violates privacy. Demand grows, but DNA test fall under the grey area. नेक्स्ट है कि DNA test occupy a grey area in the quest for justice, vacillating between the dangers of slipping into self-incrimination and encroachment on individual privacy and the imminent need to unearth the truth. They can be of help as evidence in a criminal case or in proving a claim of marital infidelity और पैटर्निटी। ठीक है, तो डीएनए टेस्टिंग जो हो रही है इंडिया में इस टाइम इंक्रीज़ हो रही है और इससे रिलेटेड कंसर्न भी हैं। क्या कंसर्न है? ठीक है, तो आर्टिकल 20 से 21, 22, 23, आर्टिकल 20, 21, 22 बेसिकली ये तीन आर्टिकल जो मेन है इन्हें पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद नेक्स्ट आता है द फंक्शन ऑफ द अपॉइंटेड गवर्नर। ठीक है, तो जो गवर्नर भी पीछे आरिफ मोहम्मद खान केरला वाला केस आया था उसके ऊपर आर्टिकल है कि गवर्नर मतलब कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये। इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 164, 163 को जो है बताया गया, एनालाइज किया गया है। ठीक है, तो हम ये पॉलिटी लक्ष्मीकांत से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो गवर्नर वाला चैप्टर जो है पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसे प्लीज़ पढ़िए। 3-4 दिनों से रेगुलरली न्यूज़ में आ रहा है। तो सबसे पहला आता है कि द फंक्शन ऑफ अपॉइंट गवर्नर इज ऑलवेज सब्जेक्ट टू द पॉलिसीज ऑफ द इलेक्टेड गवर्नमेंट एंड नॉट वाइस वर्सा। दिस इज द फाउंडेशनल थ्योरी ऑफ इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस कैन नॉट बी read in isolation. Article 163 clause 1 says that the council of ministers must aid and advise the governor. ठीक है, तो 163 clause 1 क्या बोलता है? आर्टिकल जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है मस्ट एड एंड एडवाइज द गवर्नर। हाउएवर अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 163 clause 2, the governor can act in his discretion in certain matters as permitted by the constitution. This would mean that the governor is generally bound by the cabinet decision except when he has a legitimate right to invoke his discretion, say for example in deciding a sanction to prosecute a cabinet minister or in his decision as administrator of a union territory as per the orders of the president of India, etc. Under Article 164, which contains the provisions relevant in the context of the Kerala Governor's tweet and letter, is inseparable from Article 163. Therefore, it follows that unless the cabinet or the chief minister advises the expulsion of a minister, the governor cannot cause the exit of a particular minister by withdrawing pleasure. Going by the text of Article 164 clause 1 of the Constitution, that the ministers shall hold office during the pleasure of the governor. The same principles apply to the governor as well, since the union minister also holds the office during the pleasure of the president, as in the Article 75 clause 2 of the Constitution. Withdrawal of pleasure without advice from the council of ministers as indicated by Raj Bhavan is misconception. Raj Bhavan से यहाँ पे मतलब है गवर्नर से। नेक्स्ट है द गवर्नर्स ऑफिस हैज़ अ colonial origin. The Government of India Act 1858 situated the post of governor under the supervision of the Governor General. The subsequently promulgated Government of India Act 1935 was enforced with effect from 1st April 1937. Even as per this act, governors were to act based on the advice of provincial government. ठीक है, तो ये जो आर्टिकल आया हुआ है, ठीक है, तो हम अब यहाँ पे प्रेसिडेंट से भी कोरिलेशन बोला हुआ है कि गवर्नर है तो प्रेसिडेंट को भी जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑन प्रेसिडेंट आल्सो एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, एंड दैट एडवाइस इज बाइंडिंग ऑन द
प्रेसिडेंट। ठीक है, तो इसमें आर्टिकल 72 से लेके आर्टिकल नंबर 75 76 तक पढ़ लीजिए। ठीक है, पूरा प्रेसिडेंट का चैप्टर नहीं पढ़ना है, तो आर्टिकल 72 से लेकर 75 76 तक पढ़ लीजिए। लक्ष्मीकांत बुक के लास्ट में आर्टिकल्स एट अ ग्लैंस करके चैप्टर है, वहाँ पे दिए होंगे। अगर कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम उतना तो करना बनता है, या फिर गूगल कर लें, गूगल पे भी सेम ही चीज़ मिलेगी। अब नेक्स्ट न्यूज़ है कि यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है, तो नेक्स्ट न्यूज़ है कि यूएसए हैज़ लॉन्च्ड इट्स मच एंटिसिपेटेड नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी एनएसएस। ठीक है, तो एनएसएस लेज डाउन 3 मेन फलक्रम्स ऑफ द यूएस स्ट्रेटजी गोइंग फॉरवर्ड। 3 फलक्रम क्या हैं एनएसएस के, यूएस के? इन्वेस्ट, बिल्ड एंड मॉडर्नाइज। इट सीक्स टू इन्वेस्ट इन द टूल्स ऑफ अमेरिकन पावर एंड इन्फ्लुएंस बाय स्ट्रेंथनिंग द इकोनॉमी एट होम, improving critical infrastructure and investing in technologies such as microchips and semiconductors. Consistent with this approach, effective October 12, 2022, the Biden administration had imposed a slew of sanctions impacting the US sale of semiconductors to China, as well as the ability of US citizens and residents to work in chip companies in China. Furthermore, the national security strategy seeks to build the strongest possible coalition of nations. Finally, the modernization sought by the US is intended to cater to the wide-ranging demand of internal and external security simultaneously. These capability enhancements underscore the recognition by the US of the unprecedented scale and scope of strategic competition with China. It names China as the only competitor with the capability and intent to shape the international order in a fundamental way. Outcompeting China, restraining Russia, the NSS takes both a long-term and an immediate view of the China threat and the challenges emerging from Beijing. ठीक है, तो अब NSS का इंडिया के कंसर्न में क्या है? तो इंडिया के रिलेशन में है कि इंडिया एज a partner, the Biden administration's NSS identified India as both a bilateral and multilateral partner in the Indo-Pacific, but more importantly, its status as the largest democracy and a major defense partner. As India looks to diversify and indigenize its defense needs in the medium and long term, the NSS lays out the space for partnership between India and the US. India's partnership in the Indo-Pacific has been assessed as critical in building a lattice work of strong, resilient and mutually reinforcing relationships. Through regional partnerships such as Quad and I2U2. Quad में क्या कहती हैं? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड यूएस। ठीक है, तो क्वाड में क्या कहती है? इंडिया। तो मैंने क्वाड की क्या शॉर्ट फॉर्म या क्या बोलते हैं उसे, निमोनिक बनाया है। तो क्वाड की मैंने बनाई है JAIUS, जय अस, मतलब हमारी जय हो। ठीक है, तो जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड यूएसए, ये जो है मैंने बनाई है। ठीक है, जय अस क्वाड की, जब भी अगर आपको कंट्रीज याद नहीं तो क्वाड जय अस, ये याद रखना हमेशा ही। और I2 में I 2 बार है, U 2 बार है, तो I से इंडिया, I से इजराइल, U से यूएसए और U से UAE। ठीक है, अब जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो बेसिकली सुपरस्टिशन और जो काला जादू, ब्लैक मैजिक होता है उसके ऊपर है कि इंडिया में कोई भी जो है वो एंटी ब्लैक मैजिक एक्ट नहीं है अभी फ़िलहाल। हालांकि डिफरेंट रिस्पेक्टिव स्टेट्स ने अपने एंटी ब्लैक मैजिक एक्ट जो हैं इनेक्ट करे हैं। तो ये जो आर्टिकल है ये बेसिकली जो है प्रीलिम्स में क्या आएगा, इसमें से प्रीलिम्स में आएगा कि हाँ एक वेग से स्टेटमेंट दे सकते हैं कि इंडिया का एक्ट इंडिया में इनेक्टेड है या नहीं, जो एंटी विच क्राफ्ट एक्ट है या कुछ भी है वो एक्ट इनेक्टेड है इंडिया में है कि नहीं है, प्रेजेंट है। ठीक है, या फिर कौन सी स्टेट ने जो है सबसे पहले इनेक्ट करा। ठीक है, और मेंस में, हाँ मेंस में, ठीक है, मेंस में सभी स्टेट्स का, जो जिस स्टेट का पढ़ तो मैं सभी का दूंगा, लेकिन जिस स्टेट का आपको याद रह जाएगा या मेन लगेगा कि हाँ बस एक एग्जांपल, एक स्टेट का पढ़ा, एक या दो स्टेट का पता होना जरूरी है सबसे पहले जिसने करी, और उसके बाद आपको जो भी याद रह सकती है जिस भी स्टेट का, चाहे
महाराष्ट्र का याद रह गया या बिहार का याद रह गया, ठीक है, या छत्तीसगढ़ का याद रह गया, जो एग्जांपल दे रखे हैं इसमें। तो शुरू करते हैं कि ब्रूटल मर्डर्स ऑफ टू वुमेन एज पार्ट ऑफ brutal murder of two women as part of ritualistic human sacrifices in the Kerala have left the country in shock. Chilling details of the killings have sparked a debate about the prevalence of superstitious beliefs, black magic and sorcery in Kerala. In the absence of a comprehensive law to counter such acts, the call for a strict anti-superstition law has grown louder. Inauguration of a museum, ठीक है, तो थर्ड हाईलाइट पढ़ेंगे इसके बाद, ठीक है, म्यूजियम वाली बाद में पढ़ेंगे, पर थर्ड हाईलाइट पढ़ेंगे कि एज पर दी 2021 रिपोर्ट ऑफ द NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, ठीक है, तो NCRB प्रीलिम्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, पढ़ लें कि NCRB का अबाउट पेज पढ़ लें जा करके, NCRB की वेबसाइट पे जाएं और वहाँ पे उसका जो अबाउट पेज है उसे पढ़ लें। जो डाटा आपको लगता है कि या तो प्रिंट कर लें उस पेज को या फिर लिख लें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, मेरे हिसाब से प्रिंट कर लें क्योंकि टाइम बचेगा। अगर आप लिख सकते हैं, ठीक है, सीनियर प्लेयर्स को तो याद होता ही है, जो नया बंदा है उसके लिए तो फिर मेरे हिसाब से प्रिंट कर लें, ठीक है, उसका PDF सेव कर लें पेज का या बुक मार्क कर लें उस पेज को और उसको प्रिंट करवा लें जा करके, ठीक है, क्योंकि वो हार्ड मटेरियल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो एज़ पर द 2021 रिपोर्ट ऑफ द NCRB 6 डेथ्स वर लिंक्ड टू ह्यूमन सैक्रिफाइसेज while witchcraft was the motive for 68 killings. The maximum number of witchcraft cases were reported in from छत्तीसगढ़, ठीक है, 2021 में। तो ये फैक्ट हो गया प्रीलिम्स के लिए, मेंस में हम डाल सकते हैं इसको। 2020 में इंडिया सॉ 88 डेथ्स, 88 डेथ ड्यू टू दी विचक्राफ्ट एंड 11 डाइड एज पार्ट ऑफ ह्यूमन सेक्रीफाइसेस, द NCRB रिपोर्ट स्टेट्स। बिहार वॉज द फर्स्ट स्टेट टू enact a law to prevent witchcraft identification of a woman as a witch and eliminate torture, humiliation and killing of women. The prevention of witch यानी कि डैन प्रैक्टिसेस एक्ट केम इनटू फोर्स इन अक्टूबर 1999, ठीक है, तो बिहार में सबसे पहले आया था। सिमिलर लॉ वाज पास्ड इन झारखंड इन 2001, द प्रिवेंशन ऑफ विच डैन प्रैक्टिसेस एक्ट। छत्तीसगढ़ तोनाही विच प्रताड़न निवारण एक्ट इन 2005, महाराष्ट्र प्रिवेंशन एंड इरेडिकेशन ऑफ ह्यूमन सेक्रीफाइस एंड अदर ह्यूमन इविल एंड अघोरी प्रैक्टिसेस एंड ब्लैक मैजिक एक्ट 2013, असम विच हंटिंग प्रोहिबिशन प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2015, ठीक है। तो इनमें से इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। बिहार का तो रखना पड़ेगा, या तो सबसे पहले इनेक्ट हुआ है, उसके बाद किसी भी एक स्टेट का, ठीक है। बिहार का इसलिए क्योंकि बिहार का प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट ज़्यादा है, सबसे पहले किसने इनेक्ट करा, ठीक है, ठीक है। कई बार क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी पूछ लेते हैं कि बिहार के बाद किसका आया जी, तो बिहार के बाद आया झारखंड का, उसके बाद आया छत्तीसगढ़ का, ठीक है, लेकिन इसकी आने के चांसेस कम है, लेकिन बिहार का कर लें और एक एग्जांपल और कर लें, ठीक है, पुट करने के लिए। इफ़ इट कम्स इन मेन या फिर इनडायरेक्टली, कभी कभार क्या होता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, इनडायरेक्ट क्वेश्चन आता है घुमा के, उसमें ये पॉइंट यूज़ हो सकता है। अब आती है सेकंड नंबर हाईलाइट पे, ठीक है, तो सेकंड वाली हाईलाइट पे आते हैं अब। तो बोला हुआ कि द इनाग्रेशन ऑफ, ठीक है, तो जो मियाँ म्यूज़ियम आया ना MIYA, तो जो असम में जो मियाँ म्यूज़ियम क्लोज़ हो गया, ठीक है, उसके बारे में ये न्यूज़ है कि क्यों हुआ, क्यों करा भाई, रीज़न दिया गया है। तो रीज़न दिया गया है जो मियाँ म्यूज़ियम, ठीक है, तो इनाग्रेशन ऑफ द म्यूज़ियम शोकेसिंग, ठीक है, showcasing the culture of Bengali speaking or Bengali origin Muslims in Assam was sealed on October 25 after it sparked controversy. Officials क्या बोलते हैं, the actions was taken as the house allotted under the Prime Minister's Awas Yojana Gramin scheme was converted into a museum in violation of the rules, ठीक है। तो ये प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण क्या है, ठीक है, इसके बारे में पढ़ लें, प्रीलिम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जाती है, न्यूज़ में आई है, ठीक है, वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। और इसका टारगेट भी पढ़ लें कि 2022 तक फुल हाउस इसका टारगेट था, अब एक्सटेंड तो नहीं कर दिया कि 2024 तक या 2025 तक, ठीक है, तो उसको अपडेट करें, खुद से देखें, ठीक है, माइंड को एक्टिव रखें, तभी याद रहेगी चीज़ें। अगर हम हर चीज़ स्पून फीडिंग करेंगे तो नहीं, बॉडी को वर्क करेंगे तभी खाना ढंग से पचेगा, इसलिए माइंड को भी एक्टिवली करें और देखें भी क्या है, ये क्या है, इसके अबाउट पेज में जाके देखें।
ठीक है। तो बफरिंग की यहाँ पे जो है सबसे ऊपर जो है बफरिंग की डेफिनेशन दी गई है। ठीक है, बफरिंग की डेफिनेशन हो सकता है प्रीलिम्स में स्टेटमेंट डाल दें, 3-4 स्टेटमेंट्स आती हैं तो उसमें एक बफरिंग की डेफिनेशन डाल दें। ठीक है, या फिर मेंस में पूछ लें व्हाट डू यू मीन बाय बफरिंग, आ सकता है, आ सकता है। ठीक है, तो प्रोसेस ऑफ लोडिंग द वेब पेज टू शो कंटेंट इज कॉल्ड बफरिंग। इट सिंपली मेंट दैट द टू बी displayed data is being preloaded in a certain area of the computer's memory। ठीक है, अब नेक्स्ट न्यूज़ है कि गुजरात में जो ब्रिज कोलैप्स हुआ, ठीक है, 90 डेथ होगी। तो ये जो है प्रीलिम्स के लिहाज से उतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना मेंस के लिहाज से है। ठीक है, एग्जांपल ऑफ द कहाँ पे आएगा ये, एथिक्स में डाल सकते हैं। ठीक है, कि एटीट्यूड ठीक नहीं था, जिसने बनाया होगा, जिसने रिपेयर करी होगी उसका एटीट्यूड ठीक नहीं होगा, पता नहीं उसने, अभी और रिपोर्ट्स आएंगी। ठीक है, इसी ब्रिज को लेकर के और रिपोर्ट्स आएंगी, तो उसको इसके ऊपर जो आपने टैब रखना है, इसके ऊपर नज़र रखनी है कि क्या रिपोर्ट आ रही है। इसको हम सीधा सीधा जो है एथिक्स के पेपर में यूज़ कर सकते हैं, सीधा सीधा एथिक्स के पेपर में एग्जांपल यूज़ होगा ये। ठीक है, अब लास्ट में है कि डिस्क्राइबिंग द साइमल्टेनियस प्लेसमेंट ऑफ, ठीक है, तो पीएम मोदी जी ने क्या करा कि बोला भी डिस्क्राइबिंग द साइमल्टेनियस प्लेसमेंट ऑफ 36 वन वेब सैटेलाइट्स इनटू ऑर्बिट a week ago as a major feat. Prime Minister Narendra Modi on Sunday said the move would strengthen digital connectivity across India, even the remotest part of the India। ठीक है, तो अब आप ये देखिए कि आपको यहाँ पे जो है ये इंपॉर्टेंट है, 36 वन वेब सैटेलाइट्स क्या होती हैं। ठीक है, 36 वन वेब सैटेलाइट्स क्या होती हैं, इसके बारे में प्रीलिम्स के लिहाज से जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब नेक्स्ट आता है कि आफ्टर लेइंग द फाउंडेशन स्टोन ऑफ फॉर ए C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन वडोदरा, पीएम मोदी सेड डिफेंस एंड एरोस्पेस सेक्टर्स विल बी टू इम्पॉर्टेंट पिलर्स फॉर ए सेल्फ रिलायंट इंडिया। ठीक है, तो मोदी जी के अकॉर्डिंग डिफेंस एंड एरोस्पेस सेक्टर्स। ठीक है, तो ये जो है मेंस के लिए पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि हमारे प्रधानमंत्री बोल रहे हैं सीधा सीधा कि डिफेंस एंड एरोस्पेस, ठीक है, एरोस्पेस एंड डिफेंस आर द टू इम्पॉर्टेंट पिलर्स। इसके अलावा और इम्पॉर्टेंट पिलर्स भी हैं, लेकिन ये जो सब ये भी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिलर्स हैं फॉर ए सेल्फ रिलायंट इंडिया। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रीलिम्स के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई। ठीक है, लास्ट की न्यूज़ है कि डॉल्फिन्स हैव स्टार्टेड कमिंग बैक टू गंगा विद इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ रिवर वाटर मेड पॉसिबल बाय द नमामि गंगे प्रोग्राम, द यूपी गवर्नमेंट said the state had stopped the flow of more than 460 million liters a day of sewage into गंगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जो गंगा के डॉल्फिन्स हैं उनके बारे में पढ़ लें कि गंगा के डॉल्फिन्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो है नमामि गंगे प्रोग्राम, ठीक है, इसके बारे में एक नोट बना लें आधे पेज का, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कब लॉन्च हुआ, इसका मेन मोटिव क्या है। ठीक है, और मेन कंपोनेंट्स क्या हैं, बस इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नमामि गंगे प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ, ठीक है, मेन इसका फोकस एरिया क्या है, मेन एम क्या है, और इसके मेन कंपोनेंट्स क्या हैं, 3-4, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। ठीक है, ये तो हो गया। बाकी गंगा के बारे में जान ले। ठीक है, ज्योग्राफी के लिहाज से गंगा के बारे में जान लें कि गंगा कहाँ से ओरिजिनेट होती है, गंगा के मेन ट्रिब्यूटरीज क्या हैं, वो इंडिया के मैप पे देख लें, और गंगा कितनी स्टेट से होकर जाती है, सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कौन सी स्टेट में ट्रैवल करती है। ठीक है, इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग ऑर्डर एंड डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, सबसे ज़्यादा अगर यूपी में ट्रैवल करती है, यूपी के बाद कौन सी स्टेट में करती है, वेस्ट बंगाल में करती है कि बिहार में करती है। ठीक है, सबसे मेन ट्रिब्यूटरीज यमुना हो गई, यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी। ठीक है, और नॉर्थ वाली कौन सी हैं, साउथ वाली कौन सी हैं। ठीक है, गंगा का ओरिजिन गोमुख ग्लेशियर्स हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ें जो हैं ये सारी जो है एनसीईआरटी में दी हुई हैं। ठीक है, इंडिया वाला जो है, इंडिया वाली जो एनसीईआरटी क्लास 11th की जो है उसमें दी हुई है, इसमें मैप दी हुआ है। ठीक है, वहाँ पे देखें, ये वहाँ पे देखें, वहाँ पे मार्क करें, सोर्स एक ही रखें, वहीं से देखें उठा के जो है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। चलो ठीक है जी, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।